آج ہم تاریخ کے ایک ایسے تاریک باب کو کھولنے جا رہے ہیں جو نہ صرف ایک خوفناک عذاب کی داستان ہے بلکہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اخلاقی گراوٹ کی عبرتناک کہانی بھی ہے۔ یہ ایک پیغمبر کی بے بسی، ایک قوم کی ہٹ دھرمی اور اللہ کے ایسے شدید غضب کی روداد ہے جس کی مثال اس سے پہلے اور اس کے بعد کہیں نہیں ملتی۔ ہم بات کر رہے ہیں قوم لوط علیہ السلام کی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کی ہلاکت کے کئی طریقے اختیار کیے مگر اس قوم کو جو عذاب دیا وہ الٹ کر تہو بالا کر دینے کا کیوں تھا؟ وہ کون سا جرم تھا جو اولاد آدم میں سے کسی نے پہلے نہ کیا تھا؟ یہ قصہ صرف ایک بستی کے ڈوب جانے کا نہیں بلکہ نظام فطرت سے بغاوت کا ہے۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آج آپ اس واقعے کے ان پوشیدہ پہلوؤں سے واقف ہوں گے جن کا تعلق براہ راست ہمارے آج کے معاشرے سے ہے۔ تیار ہو جائیے اس تفصیلی اور مؤثر سفر کے لیے جو آپ کے دلوں کو خوف الہی سے لرزا دے گا اور روح کو پاکیزگی کی طرف راغب کرے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ مبارک جیسا کہ قرآن میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے عظیم واقعات کے ساتھ منسلک ہے۔ حضرت لوط جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کے حکم اور اجازت سے جلا وطن ہو کر ملک خوزغر کی سرزمین جو سدوم کے آس پاس کا علاقہ تھا میں آباد ہو گئے۔ یہ علاقہ زرخیز اور بڑی بستیوں پر مشتمل تھا جس کی وجہ سے یہ ایک پر رونق مقام تھا، لیکن اس علاقے کے باشندے بظاہر خوشحال ہونے کے باوجود اخلاقی اور روحانی اعتبار سے مکمل طور پر تباہ ہو چکے تھے۔ مفسرین نے ان کے کئی جرائم کا ذکر کیا ہے۔ وہ راہگیروں کو لوٹتے تھے، دوستوں سے خیانت کرتے اور مہمانوں کے ساتھ برا سلوک کرنے کے لیے مشہور تھے۔ وہ اپنی مجالس اور محافل میں سر عام بری اور بیہودہ حرکتیں کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ شرم و حیا سے مکمل طور پر عاری ہو چکے تھے۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت سے منہ موڑ چکے تھے اور کفر و فسق پر عمل پیرا تھے۔ ان تمام برائیوں کے اوپر انہوں نے دنیا میں ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جس کی طرف اولاد آدم میں سے اس سے پہلے کسی کا خیال تک نہیں گیا تھا۔ یہ لڑکوں سے اپنی شہوت پوری کرنا اور عورتوں کو چھوڑ دینا تھا۔ اس عمل کو آج بھی اسی نسبت سے لواطت کہا جاتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے انہوں نے فطرت کے اصولوں کو توڑا اور انسانی نسل کے تسلسل کو خطرے میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے ان فاجر اور فاسق لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں نرمی اور حکمت کے ساتھ اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور خاص طور پر اس قبیح اور غلیظ حرکت سے روکا۔ سورۃ الشعراء میں آپ کی نصیحت کو بیان کیا گیا، میں تو تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ کیا تم جہاں والوں میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ لیکن قوم نے بجائے ماننے کے سرکشی اور گمراہی کا راستہ چنا۔ ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگ چکی تھی۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کو بیزاری اور تکبر سے ٹھکرایا اور الٹا ان کا مذاق اڑایا۔ کہنے لگے، اے لوط، اس نصیحت بازی سے اگر تم باز نہ آئے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے۔ ایک اور موقع پر انہوں نے کہا، لوط کے گھر والوں کو شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک بنتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کے اس رویے پر کہا، میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں، اور پھر عاجزی سے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی، اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں یعنی ان کے انجام سے نجات دے۔ جب قوم نے ہر طرح سے انکار کر دیا اور عذاب کی فرمائش خود کر ڈالی تو اللہ کی غیرت کو جلال آیا۔ اللہ نے اپنے فرشتے جن میں حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرائیل علیہم السلام شامل تھے کو نہایت خوبصورت اور نوعمر لڑکوں کی شکل میں بستی کی طرف بھیجا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آخری حجت اور آزمائش تھی تاکہ خود حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی برائی پر گواہی دے دیں۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں خوشخبری سنائی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم لوط پر آنے والے عذاب کی خبر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ لوط علیہ السلام کے چچا تھے
तो वो फौरन अपने भतीजे के लिए परेशान हुए और फरिश्तों से बहस करने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इसरार इस बात पर था कि अगर इस बस्ती में एक भी मोमिन हो तो क्या आप तब भी इसे तबाह कर देंगे? फरिश्तों ने जवाब दिया कि हम जानते हैं कि वहाँ कौन है और हम लूत अलैहिस्सलाम और उनके अहल को बचा लेंगे सिवाय उनकी बीवी के। इस पर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए इब्राहीम, इस बात को जाने दो, तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आ पहुँचा है और इन लोगों पर ऐसा अजाब आने वाला है जो कभी नहीं टलेगा। जब ये मेहमान खूबसूरत लड़कों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को सख्त गम और खौफ ने घेर लिया। कुरान ने इस कैफियत को यूं बयान किया, और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनसे गमनाक और तंग दिल हुए और कहा, आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इन मेहमानों के फरिश्ते होने का कोई इल्म नहीं था। वो जानते थे कि अगर बस्ती वालों को पता चला तो वो उन्हें रुस्वा करेंगे और वो उन्हें छुपाने या वापस भेजने की कोशिश में सख्त परेशान थे। बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने चलते हुए कई बार जोर देकर कहा, अल्लाह की कसम, मैं रुए ज़मीन पर इस बस्ती वालों से ज़्यादा खबीस लोग कोई और नहीं देखता। ये दरअसल कौम पर अजाब की हतमी दलील और गवाही थी जो खुद उनके पैगंबर ने दी। जैसा कि पहले बयान हुआ, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जिसका नाम वाहिला बताया जाता है, अपने शौहर के राजों की जासूसी करती थी। उसने कौम के लोगों को फौरन खबर दी कि आज रात लूत के घर में ऐसे खूबसूरत नौजवान आए हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। कौम के लोग नशे में बदमस्त और मस्ती में तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए आए और पहले ही वो शनी फेल किया करते थे, तो आज वो बेतहाशा आए और उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाजे पर खड़े होकर कौम को आखिरी बार नसीहत की और उन्हें उनकी बेटियों से निकाह करके अपनी ख्वाहिश पूरी करने की तरगीब दी। उन्होंने फरमाया, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं, ये तुम्हारे लिए पाक हैं, तो खुदा से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे रुस्वा ना करो। क्या तुम में कोई भी शाइस्ता मर्द नहीं है? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने यहाँ जो मेरी बेटियां कहा, इससे मुराद दर हकीकत कौम की औरतें थीं, क्योंकि नबी अपनी उम्मत के लिए बाप की मानिंद होता है। ये बात इस कुरानी आयत से भी वाज़े होती है, जहां लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, और जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं, उनको छोड़ते हो। यानी ख्वाहिश पूरी करने की असल जगह औरतें हैं। लेकिन कौम की हट धर्मी इंतहा को पहुंच चुकी थी। उन्होंने साफ साफ कहा, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बेटियों में हमें कोई ख्वाहिश नहीं है और हमारी गर्ज इन लड़कों से तुम खूब जानते हो। इस जवाब पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अपने आप को तन्हा महसूस करने लगे और बेबसी से कहा, हाय, काश मुझे तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। इस कलाम को सुनकर फरिश्तों को अंदाजा हो गया कि अब हुज्जत पूरी हो चुकी है। उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के सामने अपनी असलियत जाहिर की और कहा, ए लूत, हम तेरे परवरदिगार के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज़ तुझ तक ना पहुंच सकेंगे। मुफस्सिरीन के मुताबिक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दरवाजे से बाहर निकले और अपने पर के एक कोने से उनके चेहरों पर एक वार किया। इस वार से वो तमाम लोग अंधे हो गए। उनकी आंखों के नामो निशान मिट गए और वो चीखते चिल्लाते, दीवारों को टटोलते और एक दूसरे को धक्के देते हुए वापस भागे। कुरान ने इसे यूं बयान किया, और उन्होंने लूत को उसके मेहमानों के बारे में बहकाया, फिर हमने उनकी आंखों को मिटा दिया, बस चख मेरा आजाब और मेरे डरानी का। सूरत अल कमर की 37वीं आयत। फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, आप अपने अहल को लेकर रात के कुछ हिस्से में चल पड़े और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे मगर तुम्हारी बीवी। इसमें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को यह भी ताकीद की गई कि वो अपने अहल के पीछे चलें ताकि उन पर आजाब का कोई मंजर या आवाज न पड़े और वो पूरी तरह महफूज रहें। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का मामला बड़ा इबरतनाक है। कुरान में उसे खाइन कहा गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, दोनों बीवियों ने उनसे खयानत की, लिहाजा उनको अल्लाह के उसने कुछ भी फायदा ना दिया। सूरत अत-तहरीम।
इस खयानत से मुराद दीन में खयानत थी, यानी वो कौम के दीन पर थी और अपने शोहर की मुखबरी करती थी। जब अजाब नाजिल हुआ तो वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ निकल तो गईं, लेकिन जब उसने अजाब की पहली आवाज़ सुनी तो कौम की मोहब्बत में उसका दिल पसीज गया और उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, हाय मेरी कौम। इसी वक्त एक पत्थर उसको लगा और वहीं हलाक हो गई और पीछे रह जाने वालों में शामिल हो गई। अजाब का वादा सुबह का था और वादे का वक्त सुबह है, और क्या सुबह कुछ दूर है। सूरतुल हूद 1। जब सूरज अपनी किरणों के साथ तुलू हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उस पूरी बस्ती जो 7 शहरों पर मुश्तमिल थी, जिसमें लाखों की आबादी थी, को उसके आसपास के इलाके समेत अपने पर के एक कोने से जड़ से उखेड़ लिया। वो उसे इतना बुलंद ले गए कि आसमान के फरिश्ते उन बस्ती वालों के मुर्गों और कुत्तों की आवाज़ें सुन रहे थे। फिर उस बस्ती को उलटकर तहबाला कर दिया गया। उसके बाद उन पर सख्त कंकर के पै दर पै पत्थरों की बारिश बरसाई गई, जिन्हें अरबी में हिजारतुम मिन सज्जील कहा जाता है। ये पत्थर निशान ज़दा थे और हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा था जिसे वो लगेगा। ये तमाम शहर और उनकी आबादी मुकम्मल तौर पर सफ़े हस्ती से मिट गई और अल्लाह ने इस पूरे इलाके को एक इंतहाई बदबूदार खारे पानी का समंदर बना दिया, जो आज बहरे मुर्दार डेड सी के नाम से मशहूर है। इस समंदर के पानी से कोई नफ़ा हासिल नहीं किया जा सकता और इसके आसपास की ज़मीन भी ख़राब और बेकार है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने इसमें से बस्ती से एक खुली निशानी छोड़ दी समझने वाले लोगों के लिए। सूरत अल-अनकबूत। और मजीद फरमाया, और वो बस्ती अब तक सीधे रास्ते पर मौजूद है, बेशक इसमें ईमान वालों के लिए निशानी है। ये तबाहशुदा मकाम आज भी मुसाफिरों के गुजरने के रास्ते पर मौजूद है, ताकि हर आने जाने वाला इसको देखकर इबरत हासिल करे। कौम लूत का वाक़या हमारे लिए 3 बड़ी इबरतें छोड़ता है। इस कौम ने एक ऐसी बुराई का आगाज़ किया जो फितरत के खिलाफ थी, और उन्होंने इसे सरेआम फ़ख्र से अपनाया। इससे ये सबक मिलता है कि जब कोई कौम बुराई को छुपाने के बजाय उसका प्रचार करने लगती है तो अल्लाह का अजाब करीब हो जाता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने तन्हा होकर भी हक का परचम बुलंद रखा, अगरचे वो जालिमों के मुकाबले में बेबस होकर पुकार उठे, काश मुझे तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती। लेकिन अल्लाह ने साबित किया कि नुसरत के लिए इंसानों की कसरत नहीं बल्कि अल्लाह की ज़ात काफ़ी है। जालिमों का अंजाम आज भी करीब है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और ये सज़ा जालिमों से कुछ दूर नहीं है। सूरत हूद। यानी जो भी आज के दौर में इस कौम लूत की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो इस अजाब की वईद से बच नहीं पाएगा। इमाम अहमद बिन हंबल और दीगर आइम्मा का मजहब है कि इस फेल का मुर्तकिब होने वाले को कौम लूत की तरह पहाड़ की चोटी से गिराकर पत्थर मारे जाएंगे, जिसका इशारा इस आयत में मौजूद है। इसलिए हर आकिल और समझदार इंसान को चाहिए कि वो इस किस्से से ईमान, तकवा और शर्मो हया का दर्स ले और दुनिया की इन झूठी ख्वाहिशात की पैरवी से बचे जो इसे कौम लूत के अंजाम तक ले जा सकती हैं। अजीज सामईन व नाजरीन, कौम लूत का वाक़या दर हकीकत तहदीद और इंतबा का एक अब्दी निशान है। ये एक वाज़े वार्निंग है जो हमें अपने मुआशरे, अपने घरों और सबसे बढ़कर अपने नफ्सों का जायज़ा लेने पर मजबूर करती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा अंजाम इस तबाहशुदा बस्ती जैसा न हो तो हमें फ़ौरन इन तमाम बेहयाइयों और मुनकरात से मुंह मोड़ना होगा जो हमारे आसपास आम हो चुकी हैं। अल्लाह ताला ने इस कौम के वाक़े को अपने कलाम में बार बार इसलिए बयान किया ताकि ये एक किस्सा न रहे बल्कि ज़िंदा हकीकत बनकर हमारे सामने रहे।